अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज़ कंप्लीट डोमिनेंस। इन दिस लेक्चर we are going to study about the dominance with the help of different examples. Let's start with the definition of complete dominance. Complete dominance, as the word indicates, is a type of dominance in which one of the allele or the gene completely masks the effect of other allele or gene. So the dominant allele always overcome the features of the recessive allele. So the complete dominance occur when one allele or variant of a gene completely masks one another. मीन के एक जीन जो कि डोमिनेंट होती है वो रिसेसिव जीन को कम्प्लीटली जो है वो सप्रेस कर देती है, मास्क कर देती है. सो दिस इज़ अ complete dominance. The trait that is expressed is described as being dominant over the trait that is not expressed. So the two traits are there, the one trait that is dominant and the other trait is recessive. So in the F1 generation always the dominant trait will be appear, not the recessive one. सो डेफिनेशन से आपको पता चला कि कंप्लीट डोमिनेंस क्या है. कंप्लीट डोमिनेंस एक्चुअली ये है कि इसमें जो है वो एक जीन जो है वो डोमिनेंट होती है और दूसरी क्या होती है, रिसेसिव होती है. तो F1 जनरेशन में ओनली द ट्रेट दैट इज़ डोमिनेंट विल बी एक्सप्रेस्ड while the other will not be expressed. Most organisms are diploid, that is they get two copies of each gene, one from each of their parents. Diploid mean that we have two set of chromosomes, one from each parents. So having two copies of each gene products against the harmful effects of mutation. In many cases an organism might have a gene that is experience the harmful mutation. For example, there are the certain genes that are not feasible for the product. They cause the mutation and they cause the harmful mutation, but still be able to function because it also has a healthy copy of the gene. Sometime what happen कि कभी कभी ये होता है कि हमारी जो जीन की कॉपी है उसके अंदर म्यूटेशन होती है, लेकिन फिर भी वो नॉर्मली बिहेव करती है. क्यों? क्योंकि बिकॉज दे हैव अ वन कॉपी ऑफ द हेल्दी जीन्स. तो जो हेल्दी जीन होती है वो क्या होती है, डोमिनेंट होती है. जबकि जो म्यूटेटेड जीन है, if it is recessive then it is not going to express in the generation. So the normal version of the gene will be active and it will mask the effect of the mutation, so it will work normal or properly. So this is the complete dominance. Look at the example of brown eyes. For example, is a trait that exhibit complete dominance. मीन के जो brown eye color है human being में, that is the dominant. Someone with a copy of the gene from brown eyes will always have the brown eyes. मीन के अगर दोनों पेरेंट्स में कॉपीज़ हैं ब्राउन आइज़ की, इसके साथ साथ उनके दरमियान एक रिसेसिव जीन भी है, तो हमेशा जो एक्सप्रेशन में आएगी वो कौन सी आएगी, ब्राउन आइज़ आएंगी. तो ब्राउन आइज़ इज़ द डोमिनेंट वन. ब्लू आइज़ ऑन द अदर हैंड आर रिसेसिव. If a copy of the gene from brown eye is present, the blue-eyed gene will be completely masked. For example, if we have a parent that one is heterozygous dominant for the brown eye and other is homozygous brown eyes, mean then the progeny will be brown eyes because there will be no expression of the blue eye. तो blue eye जो है वो अपना expression show नहीं करेगा. Other dominant traits in human include the other examples are the dark hair color, the dimple, double jointedness, and immunity to poison ivy. So these are the example of the complete dominance. So we can see, if someone asks that give the different examples of the complete dominance, then we will say that the brown eye color, the dark hair color, the dimple, and the immunity to poison ivy, these all are the examples of the complete dominance. A very important question raised from the progeny of the brown eyes. क्या होता है, कभी कभी हमने देखा है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो ब्राउन आइज़ होते हैं, लेकिन उनकी जो ऑफस्प्रिंग है उनमें किसी न किसी में ब्लू आइज़ होती हैं. ऐसा क्यों है?
तो हम कहते हैं कि द ब्राउन आइज आर द डोमिनेंट वन एंड दे मार्क्स द इफेक्ट ऑफ द brown eyes. So let's see what is going to happen over here. Why could parents who both had the brown eyes give birth to a blue-eyed color? So the question is कि parents जिनकी brown eyes हैं, why they have a blue-eyed child? Why did some children of brown-eyed parents have blue eyes while most did not? So the answer is the brown eyes are caused by the production of a brown pigment melanin in the iris. People with blue eyes actually have a mutation where melanin in the retina is not successfully produced. क्या होता है, जो ब्राउन आई कलर है वो किसकी वजह से होता है? हमारे आयरस में एक पिगमेंट होता है ब्राउन, जो मेलानिन जिसको कहते हैं, मेलानिन इज़ द पिगमेंटेशन. तो जो ब्लू आई कलर है दैट इज़ द म्यूटेटेड, इट्स ड्यू टू द म्यूटेशन. सो वेयर मेलानिन इन द रेटिना इज़ नॉट सक्सेसफुली प्रोड्यूस. तो क्या होता है, जहाँ पे ब्लू आइड जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके रेटिना के अंदर मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होता, जिसकी वजह से उनके अंदर ब्राउन जो कलरेशन है वो नहीं आती. As a result, people with just one copy of a working melanin producing gene will be able to produce melanin and will have brown eyes. मीन अगर किसी के अंदर एक वो हेट्रोजाइगस कैरियर है तो उसके अंदर क्योंकि वो जीन वन सिंगल कॉपी है ब्राउन आइज की, तो द ऑर्गेनिज्म विल बी brown eyes. This also means that brown-eyed people can be carrier of the blue-eyes gene and may have blue-eyed children if the children receives a recessive blue-eyed gene from each parent. For example, if both parents are heterozygous for the brown eyes, mean they have a capital B small b, and the other parents also have the capital B and the small b, then definitely in their generation one child must be with the brown eyes, because blue eyes. Why? Because they are the carrier of the blue eyes genes. So if the parents are heterozygous, so it's mean that they are going to express their blue eye recessive genes in the parent in the offspring. तो बच्चों में इसी वजह से हम ये कहते हैं कि पेरेंट्स आर ब्राउन आइज बट वन ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग हैव द ब्लू आइज. तो इस मीन दैट द पेरेंट्स आर द कैरियर फॉर द ब्लू जीन्स. दे हैव द ब्लू जीन, दे हैव वन कॉपी ऑफ ब्लू जीन्स एंड दे हैव वन कॉपी ऑफ द ब्राउन आइज जीन. तो जो अगर ऑफस्प्रिंग में दोनों रिसेसिव जीन्स जो हैं वो बेबी में ट्रांसफ़र हो जाएं तो डेफिनेटली द बेबी इज़ गोइंग टू हैव द ब्लू आई. So that is why we can say that if the parents with the brown eyes, there is a possibility, there is a 100% possibility that the child is going to have the blue eyes. तो अब आपको समझ आ गया कि how the blue eyes gene inherited. तो वो तभी पॉसिबल होगा जब दोनों पेरेंट्स जो हैं वो कैरियर होंगे फॉर द ब्लू आइज. Let's see another example. For example, we have a white flower and other is a red flower. So the gene for the white are the W and the W, and for the red color is the capital R and capital R. So when we are going to make the cross, we are going to see that both of the all the progeny is red color, mean the red color is the prominent one. So अगर हम उसमें they all are heterozygous, they all are heterozygous. तो हेट्रोजाइगस कैसे होगा? हेट्रोजाइगस कैसे कि एक कैपिटल आर है, एक डब्ल्यू है, एक कैपिटल आर है, डब्ल्यू. तो इनका अगर हम इनका F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस करवाएं तो क्या होगा? हमारे अंदर पास जो है, क्योंकि वो दे आर द कैरियर, वो हेट्रोजाइगस का हमने जब आपस में क्रॉस करवाया तो क्या होगा? 3:1 की रेशियो आएगी. 3 जो है हमारे पास डोमिनेंट आएंगे और एक जो है हमारे पास रिसेसिव के साथ आएगा. तो दिस इज़ आल्सो द टाइप ऑफ द कंप्लीट डोमिनेंस इन द फ्लावर. अब जो दूसरी एग्जांपल है जो कंप्लीट डोमिनेंस की है, डैट इज़ द ड्वार्फिज्म. ड्वार्फिज्म क्या है? हाइट, यानी कि स्मॉल हाइट.
छोटी हाइट होना है। इट माइट सरप्राइज यू टू हियर दैट द जीन्स फॉर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ dwarfism आर relatively रेयर कंडीशन इन विच द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स आर वेरी शॉर्ट इज डोमिनेंट। तो मतलब कि dwarfism की जो जीन्स है दे आर, हालांकि ये रेयर कंडीशन है, तो इसकी जो जीन्स हैं वो क्या है, डोमिनेंट हैं, रेयर है बट डोमिनेंट। तो अ पर्सन विद जस्ट वन कॉपी ऑफ द जीन फॉर dwarfism विल हैव dwarfism, यानी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म में एक ही कॉपी है, वो हेट्रोजाइगस है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वो dwarf ही होगा। दिस मीन दैट द चिल्ड्रन ऑफ अ पेरेंट विद dwarfism हैव एट लीस्ट 50/50 चांस ऑफ हैविंग dwarfism themselves। तो अगर एक कैरियर है और एक जो है वो डोमिनेंट दोनों जीन्स के साथ है, तो मीन डेफिनेटली सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ऑफस्प्रिंग है, वो dwarfism में आएंगे। लेकिन अगर उनमें से जो है वो दोनों हेट्रोजाइगस हैं, तो उसमें चांस 50/50% चांस है कि नॉर्मल भी होंगे और dwarf और ऑफस्प्रिंग भी होंगे। बट इट आल्सो मीन्स दैट टू पेरेंट्स विद dwarfism कैन हैव अ चाइल्ड विदाउट dwarfism इफ़ बोथ आर कैरियर ऑफ द जीन फॉर नॉर्मल लिम्ब ग्रोथ। ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने ब्राउन आई कलर में देखा कि अगर दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस है, दे आर द कैरियर ऑफ द नॉर्मल जीन, तो डेफिनेटली उनकी जो आगे जाके एक्सप्रेशन में जो है वो नॉर्मल लिम्स के साथ भी उनके ऑफस्प्रिंग होंगे और dwarfism भी होगी उनकी जनरेशन में। तो ये एक अनदर एग्जांपल है किसकी, dwarfism की। और कौन सी dwarfism जो है वो एग्जांपल है कंप्लीट डोमिनेंस की। अब मेंडल ने कौन कौन से डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो हमने देखा कि जो मेंडल है ही स्टडीड द 7 डोमिनेंट कैरेक्टर। कौन कौन से, स्मूथ स्किन, येलो पीस, पर्पल फ्लावर्स, इन्फ्लेटेड सीड पोड्स, green pod color, axial position of the flowers, and tall stem. So these are the 7 dominant characters that the Mendel have studied during his experimentation. For example, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हमारे पास ट्रू ब्रीडिंग ग्रीन पोड है और द सेकंड इज़ द ट्रू ब्रीडिंग येलो पोड। दिस वन इज़ आल्सो showing the complete dominance. Here when we make a cross between the green pod with the yellow pod, then we are going to see that the first generation is all are the with the green pod. It's mean the green pod is dominant over the yellow pod. So on one side there is the green parent, capital G. In the Punnett scale you can see that on the horizontal side these are the small g. So when the first G meet with the small g, then it is going to be have capital G and small g. It is the heterozygous carrier of the green pod and the yellow pod. So but the progeny is going to show the green color. तो ये क्या है, ये भी एक कंप्लीट डोमिनेंस को शो करता है, जिसमें एक करेक्टर जो है वो कम्प्लीटली मास्क कर देता है सेकंड करेक्टर को और सेकंड ट्रेट को। लेकिन दे ऑल आर कैरियर। हम देख सकते हैं कि सबके अंदर 2 तरह की जीन्स है, कैपिटल जी एंड द स्मॉल जी, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो जब हम इनका आपस में सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो डेफिनेटली एक ऑर्गेनिज्म जो होगा वो येलो ब्रीडर होगा, ठीक है। उसके अंदर जो जीन्स होंगी वो येलो, यानी कि रिसेसिव जीन्स हैं वो भी एक्सप्रेशन में आएंगी। तो डेफिनेटली कंप्लीट डोमिनेंस जो है वो F1 जनरेशन के बाद जब उनको आपस में सेल्फ क्रॉस करवाया जाता है तो उनके अंदर जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर जो है F2 में डेफिनेटली एक्सप्रेस होता है। दिस इज़ द कंप्लीट डोमिनेंस। Here another example, for example you can see that a purple color flower when make a cross with the pink flower, then we can see that all the progeny is purple color, but they are the heterozygous, mean they also carry the one copy of the recessive allele and they carry the one copy of the dominant allele. तो F1 जनरेशन में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो क्या होंगे, कैरियर होंगे बट विद द डोमिनेंट कैरेक्टर्स। सो जब इनका आपस में सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर जो है इट इज़ आल्सो गोइंग टू बी अपीयर। सो दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ द डोमिनेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब रेड कलर फ्लावर डेट इज़ कैपिटल आर उसका जब हम क्रॉस करवाते हैं वाइट फ्लावर के साथ स्मॉल आर के साथ, तो जो प्रोजनी है दे आर गोइंग टू बी रेड बट द हेट्रोजाइगस कैरियर
तो इसके अंदर जो है वो एक डोमिनेंट अलील आएगी और एक जो है वो रिसेसिव अलील आएगी। तो ये सारा का सारा क्या था, डैट इज़ ऑल अबाउट द कंप्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे को डोमिनेंस। तो इस तरह से हम 3 तरह की इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, डैट इज़ द कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड द को डोमिनेंस। और फिर हम इनका आपस में डिफरेंस देखेंगे कि कंप्लीट का इनकम्प्लीट डोमिनेंस से क्या डिफरेंस है, तो इनकम्प्लीट का को डोमिनेंस से क्या डिफरेंस है। इस तरह से हम 3 पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। को डोमिनेंस, और अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें तो दे आर अदर देन द मेंडेलियन इनहेरिटेंस, दे आर द नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। So that is all about the complete dominance. See you next time with a new topic, that is incomplete dominance, and we will see the comparison between the complete dominance and the incomplete dominance. Till then, take care. Allah Hafiz.